ராமானுஜரின் 1000வது பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு சிறப்பு தபால் தலையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டிருக்கிறார். அந்த நேரலை காட்சிகளை பார்க்கலாம். சிறப்பு தபால் தலையை வெளியிட்ட பிரதமர் தற்போது பேசி வருகிறார். அந்த காட்சிகளையும் பார்க்கலாம். ईश्वर को समझने के लिए माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है कि आप कृपया मार्गदर्शन द्वैत और अद्वैत संबोधित करें। द्वैतवाद और अद्वैतवाद ये बड़े प्रचलित थे उस कालखंड में। मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी रामानुजाचार्य जी ने इस तनाव के माहौल में दो छोर पर दुनिया चल रही थी, विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत देकर के कैसे लोगों को जोड़ा जाए, कैसे अलग अलग चीजों से अच्छाइयों को मिलाया जाए, इस परंपरा को जन्म दिया। हर वो परंपरा जो समाज में भेद पैदा करती हो, समाज को बांटती हो, संत श्री रामानुजाचार्य उसके खिलाफ थे। वो उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए, उसे बदलने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक देते थे, प्रयास करते थे। आपको ज्ञात होगा किस तरह मुक्ति और मोक्ष के जिस मंत्र को उन्हें सार्वजनिक करने से मना किया गया था, क्योंकि अपने यहां परंपरा है कि जब शिष्य को गुरु मंत्र मिलता है तो एक पर्सनलाइज होता है, और गुरु कहते भी हैं कि मैंने जो मंत्र दिया है वो तेरे मोक्ष के लिए है, ये तुम्हें किसी को कहना नहीं है, तुम्हें हक नहीं है। जब रामानुजाचार्य जी को भी ये कहा गया, गुरु मंत्र दिया गया, उनके लिए जीवन में जो आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने थे उसके सारे रास्ते मिल गए। இந்து மத வேதாந்தி ராமானுஜரின் 1000வது பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு சிறப்பு தபால் தலையை வெளியிட்ட பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர் குறித்து பேசி வருகிறார். அந்த நேரலை காட்சிகளை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ராமானுஜரின் பெருமைகளை விளக்குமாறு அவர் வாழ்வில் நிகழ்ந்த சில முக்கிய தருணங்களை குறிப்பிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசி வருகிறார். அந்த காலகட்டத்தில் மக்களிடையே ஒற்றுமையை ஏற்படுத்த மிகுந்த பாடுபட்டவர் ராமானுஜர் என்று அவர் குறிப்பிட்டு பேசி வருகிறார். उन्होंने बांट दिया। उन्होंने कहा था இந்து மதத்தின் வைணவ பிரிவின் புகழை ஓங்கச் செய்யும் முனைப்பில் செயல்பட்டவர் வேதாந்தி ராமானுஜர். இன்று அவரது 1000வது பிறந்த தினம். இந்த சிறப்பு தருணத்தை முன்னிட்டு சிறப்பு தபால் தலையை பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டு தற்போது பேசி வருகிறார். 1000 साल पहले इस प्रकार का व्यक्तित्व आज भी अगर 10 लोगों के बीच में अलग विचार रखना है तो हम 50 बार सोचते हैं यार इसको बुरा तो नहीं लगेगा, चुप रह जाते हैं, भाग जाते हैं। 1000 साल पहले सारी परंपराओं के खिलाफ कितना बड़ा जबरदस्त कन्विक्शन होगा, भीतर कैसी अंतर चेतना होगी जो उन्हें ये करने के लिए सामर्थ्य देती थी। संत श्री रामानुजाचार्य का हृदय इतना विशाल, इतना परोपकारी था। दिस इज प्रिसाइजली व्हाई स्वामी विवेकानंद स्पोक ऑफ द हार्ट ऑफ संत श्री रामानुजाचार्य, द लार्ज हार्ट दैट क्राइड फॉर द downtrodden at a time when being downtrodden was recognized and accepted as a part of one's karma. Sri Ramanujacharya ji broke the subtle prejudice of his times. His thinking was much ahead of his era. In more than one sense,
Sant Sri Ramanujacharya was a millennial sage who foresaw 1,000 years before the hidden and unspelled out aspirations of the downtrodden. He realized the need to include the socially included, outcasts and the divyangs to make the not only religion but the society itself wholesome and complete. गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए वो साक्षात भगवान बन करके आए थे. ராமானுஜரை பற்றி தற்போது பேசி வரும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர் குறித்து சுவாமி விவேகானந்தா கூறியவற்றை நினைவு கூர்ந்து பேசியிருக்கிறார். மிகப்பெரிய மனம் படைத்தவர் ராமானுஜம் என்றும் எல்லோரையும் சமமாக பார்ப்பவர் என்றும் சுவாமி விவேகானந்தா ராமானுஜரை போற்றி இருப்பதாக அவர் தற்போது பேசி வருகிறார். 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன் பிறந்தவர். அந்த காலகட்டத்திலேயே இறைவன் முன்பு எல்லோரும் சமம் என்பதை வலியுறுத்தி போதித்தவர் என்ற பெருமையையும் தற்போது பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டு பேசி வருகிறார். कितनी बड़ी सरकार हो भी नहीं कर सकती. उन्होंने 1000 साल पहले ये हिम्मत दिखाई थी कि सारी व्यवस्था को पलट दिया. और उन्होंने क्या किया, अलग अलग जातियों के लोगों को मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किया. महिलाओं को भी कई जिम्मेवारियां सौंपी गई. मंदिर को उन्होंने नागरिक कल्याण और जन सेवा का केंद्र बनाया. उन्होंने मंदिर को एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में बदल दिया जहां गरीबों को भोजन, दवाइयां, कपड़े और रहने के लिए जगह दी जाती थी. एक प्रकार से सामाजिक चेतना का केंद्र बना दिया. उनके सुधारवादी आदर्श आज भी कई मंदिरों में रामानुज कूट की तरह नजर आते हैं. आज भी ऐसे कितने ही उदाहरण हैं आपको जिंदगी में. उनके जीवन में से हमें अनेक ऐसे जिसमें परंपराओं से बाहर निकल करके केंद्र में समाज का दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, उपेक्षित इन्हीं का कल्याण, वो भी मुख्य धारा के सभी लाभों से लाभान्वित होना चाहिए, ये चिंतन था. कास्ट सिस्टम को चुनौती देते हुए उन्होंने अपना गुरु भी ऐसे व्यक्ति को बनाया जिसे जाति की वजह से तबका समाज गुरु बनने योग्य नहीं मानता था. मैं मानता हूं आज भी हम हिम्मत नहीं कर सकते हैं. ये कितनी बड़ी हिम्मत होगी कि समाज जिसको गुरु मानने को, स्वीकार करने को तैयार नहीं, उस पद देने को तैयार नहीं, इन्होंने कहा जी नहीं, मैं उसको गुरु बनाऊंगा. बनाया. वे आदिवासियों तक गए. हमारे यहाँ कभी कभी कहा जाता है ना कि हमारे संत समाज के लोगों को क्या किया, तो बोले बड़े मठ मंदिरों में रहे, लड्डू खाए और जिंदगी बताए. ऐसा नहीं था. कितनी बड़ी तपस्या की है उस समय, कितने कष्ट झेले हैं. रामानुजाचार्य जी खुद जंगलों में आदिवासियों के बीच गए, उन्हें जागरूक किया, उनकी सामाजिक जिंदगी में सुधार के लिए प्रयास किए, योजनाएं बनाई, व्यवस्थाएं खड़ी की. और इसलिए हर धर्म के लोगों ने, हर वर्ग के लोगों ने संत श्री रामानुजाचार्य की उपस्थिति और संदेशों से प्रेरणा पाई. मेलकोट के मंदिर में சமய வழிபாட்டை மனித குலத்தின் மேம்பாட்டிற்காக பயன்படுத்தும் ஒரு ஊடகமாக மாற்றிய பெருமை ராமானுஜருக்கு உண்டு என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசி வருகிறார். ஆலயங்களில் பெண்களுக்கும் சமமான வாய்ப்பை அளித்தவர் ராமானுஜர் என்றும், ஆலய வழிபாட்டின் ஒரு அங்கமாக பொருளாதார ரீதியில் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு சேவையாற்றும் வகையில் மருத்துவம், உணவு வழங்குதல் போன்ற விஷயங்களை அறிமுகப்படுத்தியவர் ராமானுஜர் என்றும் பேசி வருகிறார். ஏழை எளிய நலிந்த பிரிவினர்களின் மேம்பாட்டுக்காக பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்தவர் ராமானுஜர் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசி வருகிறார். அது மட்டுமல்லாது அப்படிப்பட்ட பொருளாதார ரீதியில் நலிந்த மக்களோடு தங்கி இருந்து அவர்களது சமுதாய வாழ்க்கையை புரிந்து கொண்டு அவர்களுக்கான மேம்பாட்டு திட்டத்தை வகுத்து கொடுத்தவர் என்றும் பேசியிருக்கிறார். आज भी बीबी नचियार की मूर्ति पर
श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। बीबी नचियार की मूर्ति की तरह ही संत श्री रामानुजाचार्य का संदेश आज भी उतना प्रासंगिक है। संत श्री रामानुजाचार्य के जीवन और शिक्षा से भारतीय समाज का उदार, बहुलतावादी और सहिष्णु स्वरूप और मजबूत हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी, बहुत कम लोगों को मालूम है ये, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी उनके बारे में वो एक मैगजीन निकालते थे, बहिष्कृत भारत, बाबा साहब अंबेडकर। 3 जून 1927 बहिष्कृत भारत में बाबा साहब अंबेडकर ने एडिटोरियल लिखा था और उस एडिटोरियल ராமானுஜரின் 1000வது பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு சிறப்பு தபால் தலையை டெல்லியில் வெளியிட்டு தற்போது பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசி வருகிறார். அவர் பேசுகையில் ராமானுஜரின் பெருமைகளை எடுத்துரைக்கும் வண்ணம் அவரது பேச்சானது அமைந்திருக்கிறது. பல்வேறு தலைவர்களும், சுவாமி விவேகானந்தர், அம்பேத்கர் உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைவர்களும் ராமானுஜரின் கொள்கைகளை ரசித்திருப்பதாக பிரதமர் மோடி பேசி வருகிறார்.